A very good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Okay, so now we'll be starting our session. Today's topics are like this. You will be learning protein structure prediction, and if time permits, we'll go for subcellular localization of the protein, and in which we learn these four servers, which helps us to find out exact location of your protein. So we'll go for the first topic of uh, today's session, that is protein structure prediction. Now, as we have learned in the last session that to, to analyze any protein structure, we have number of methods by which we'll be able to isolate a protein, then we can purify a protein, then we can concentrate that protein. After that, we need to crystallize that protein, and after doing the crystallization of that protein, we need to go for the X-ray crystallography. Once the crystallography been done, next part is to analyze for its 3D structure. There are a number of softwares through which we can determine the three-dimensional structure of the protein. After determining the three-dimensional structure of the protein, we need to check it out for the structural quality and its resolution. To do that, we have seen there is a Ramachandran plot. After ascertaining the quality of the structure through Ramachandran plot, we are confirming the quality of the protein structure is good, and then only we are submitting into the RCSB PDB or in our research. So this is a very general practice of determining any three-dimensional structure of protein. This is a completely wet lab and in silico approach. Now, I have already told you that proteins are a very complex molecule actually. They remain in contact with some other molecules available in a cell, and resultant many times their structures are also remain dependent on some factors in a cell. For example, few proteins require cofactor or coenzyme to make its shape or to make its structure. Then few proteins are remain in contact with the carbohydrates. Few proteins remains in contact with the phosphate ions. Few proteins remains in contact with the lipid. So based on these associations, these proteins becomes complex. And whenever we are analyzing it for its three-dimensional structure, we generally do not consider them in a complex. We always consider them in a as a single entity, as a single molecule. But in reality, these proteins remains in a complex structure or in association with some other molecules, the like one which I have told you right now, like carbohydrates, lipids, proteins, and others. So it becomes very tough for us to study them in complex or study them in association, because whatever the laboratory practices we will adopt, those practices will only remain with specific to the protein purification, protein isolation, protein concentration, and protein crystallization. All these protocols will never consider a combination of protein and lipid, protein and phosphate, protein and sugar, like that. And that's why we always used to see that our protein will lose this association whenever we are going for the three-dimensional structure analysis. The result, most of the proteins uh, get distort or they lose their three-dimensional structure. Okay, so if they lose the three-dimensional structure, then uh, it will create a problem. Okay, and that's why we'll not be able to what you can say determine the protein structure properly, right? So
protein structure determination is having several drawbacks, right? That what we have seen right now. First thing is that it cannot determine the three-dimensional structure of the protein if they are in complex, means if they are in association, okay, with lipid, carbohydrate and all. Second drawback is that many proteins are having short life, very short life. They remains very short in life, and that's why we'll not be able to analyze them. So these are the two major drawbacks of protein structure determination. Hence, we are not being able to determine all protein structures. Okay, will not be able to determine all protein structures. This is the problem that we cannot do. And second thing is that the the process the, the process of structure determination is tough. As we have seen, there are so many steps are there. So that's why it becomes very much impossible to analyze the dimensional structure of every protein. Hence, it has been put forward. Okay, it has been put forward that why not to predict why not to predict the structure in silico. Okay, so अगर हमको वेट लैब से करके उसका 3D स्ट्रक्चर नहीं निकालना है किसी प्रोटीन का, या हम उतना अप्रोच नहीं रखते, उतना उतना फैसिलिटी नहीं रखते, तो क्या हमारे पास कोई और दूसरा तरीका है जिससे हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर निकाल सकते किसी प्रोटीन का? So this approach has been put forward, and the this problem has been solved actually. This problem has been solved by developing developing protein structure prediction algorithm. Okay, so now researchers have developed protein structure prediction algorithm, and this also known as homology modeling. Okay, so protein structure prediction algorithm has been developed. It is also been known as homology modeling. So now what is the ultimate solution available in front of us? That all proteins can't be crystallized, है ना, सारे प्रोटीन क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते. Hence, can we be able to predict the structure by using computer? The answer is yes. Okay, yes. So now we can do that. अगर आपके पास में ऐसे प्रोटीन्स है जिनका हम क्रिस्टलाइजेशन नहीं कर सकते, या जिनका हम अभी एक्सपेरिमेंटली एविडेंस नहीं है हमारे पास में, फिर भी क्या हम उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्या? यस, वी कैन प्रोड्यूस इट. ठीक है, इसके लिए हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें एक एल्गोरिदम है जिसको बोलते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन. ओके, तो प्रेडिक्शन और डिटर्मिनेशन में बहुत बड़ा फर्क है. ठीक है, तो हम जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स यूज करेंगे वो है प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन, और जो एक्सपेरिमेंटली यानी एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी से डिटरमाइन करेंगे उसको कहते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन. ओके, प्रेडिक्शन क्या है और डिटर्मिनेशन क्या है ये आपको समझ गया. डिटर्मिनेशन मीन्स एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज. ठीक है, यानी आप उसको डिटरमाइन करेंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडीज से, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी इस्तेमाल करेंगे. पर प्रेडिक्शन में क्या करेंगे? प्रेडिक्शन में you will use the base of the
डिटर्मिनेशन, ठीक है, यानी आप डिटर्मिनेशन का बेस यूज करेंगे, ठीक है, बट आप रियली उसको डिटरमाइन नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप उसका डिटर्मिनेशन का बेस इस्तेमाल करके बाय यू विल बी यूजिंग द बेस ऑफ द डिटर्मिनेशन फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर। ये थोड़ा फर्क है, थोड़ा समझ लीजिए। डिटर्मिनेशन क्या है? एक्सपेरिमेंटल स्टडीज है, यानी यहाँ पे आप रियली उस प्रोटीन को एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी तक लाओगे और फिर वहां से उसका एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना के रामाचंद्रन प्लॉट एनालिसिस करके आप उसको सबमिट करेंगे, ठीक है। बट इन प्रेडिक्शन आप ऐसा नहीं कर रहे, आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन जो है प्रोटीन का, जो ऑलरेडी हुआ है किसी पर्टिकुलर प्रोटीन का, उसका बेस लेके आप प्रेडिक्शन करते हो, ठीक है। आपको डिटेल समझाता हूँ उसके बाद में, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये कॉम्पिटिशनल है, इन सिलिको है, इसमें आपको रियल एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी ये 80% 80% सेम होता है एज कंपेयर टू डिटर्मिनेशन। सो स्टिल इट इज अ वेरी गुड वैल्यू। 80% अगर मिलता है सेम क्लोज, तो हम इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं रिसर्च में। सो व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ prediction instead of determination? क्या जरूरत है आप प्रेडिक्शन करने की किसी प्रोटीन का स्ट्रक्चर का इंस्टेड ऑफ डिटर्मिनेशन? कोई मुझे बता सकता है why there is a need of a prediction instead of determination? अभी मैंने कुछ बताया आपको, ये सारी चीजें है ना, कौन सी चीजें बताएं? सबसे पहली बात है कि प्रेडिक्शन क्यों करना चाहिए, डिटर्मिनेशन क्यों नहीं करना चाहिए, और प्रेडिक्शन क्यों कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन क्यों नहीं कर रहे। इसके रीजन है, सबसे पहली बात है कि किसी की प्रोटीन स्ट्रक्चर का थ्री डायमेंशनल डिटर्मिनेशन जो है ये कॉस्टली होता है, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सेकंड थिंग इज दैट जो भी डिटर्मिनेशन है आपका, वो हर प्रोटीन के लिए नहीं किया जा सकता, ठीक है, एवरी प्रोटीन के लिए नॉट पॉसिबल। थर्ड, ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। फोर्थ, ये प्रोटीन स्पेसिफिक होता है, तो कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है इसके, हर एक प्रोटीन के अलग अलग है। देन ये बफर डिपेंडेंट है। देन सिक्स, ये इन्वायरमेंट डिपेंडेंट है। तो इतने सारे उसके फैक्टर्स है जिसके कारण ये बहुत मुश्किल हो जाता है हर एक प्रोटीन का डिटर्मिनेशन करना, ठीक है। सो इसको अगर हम साइड वाइज कर दे थोड़े समय के लिए, तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट व्हाई नॉट टू गो फॉर प्रेडिक्शन, ठीक है। बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज अबाउट 80% कॉन्फिडेंस लेवल होता है इसके ऊपर, ठीक है। 80%, 20% का कॉन्फिडेंस नहीं रहता इसके अंदर। सो प्रेडिक्शन इज द बेटर ऑप्शन, ठीक है। स्पेशली जब आप कोई अर्ली स्टडीज कर रहे हो, ठीक है, अर्ली स्टडीज करने हो या फिर अर्जेंट स्टडीज होंगी, ठीक है, तो आप जनरली प्रेडिक्शन का इस्तेमाल कर लेते हो। अर्ली स्टडीज या अर्जेंट स्टडीज, या फिर और फॉर दोज प्रोटीन्स who cannot be crystallized, ठीक है, या फिर उन प्रोटीन्स के लिए जिनके लिए आप कभी भी क्रिस्टलाइजेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन सभी के लिए आप हमेशा प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन करेंगे। अब एग्जैक्टली प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन क्या है ये थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन को इसको स्ट्रक्चर थ्रेडिंग भी कहते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर थ्रेडिंग भी कहते हैं कभी कभी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्ट्रक्चर थ्रेडिंग तो होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। स्टेप्स क्या है, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन करते कैसे हैं ये आपको समझाते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व, कौन से स्टेप्स है? सबसे पहली जो स्टेप है वो है that if you want a protein structure of any amino acid sequence,
यानी आपके पास प्रोटीन सीक्वेंस है और उसका 3D स्ट्रक्चर आपको चाहिए, तो आप वो स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज योर फर्स्ट नीड, दैट यू नीड अ अमीनो एसिड सीक्वेंस, यानी आपके पास में प्राइमरी सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है। वंस यू गेट द अमीनो एसिड सीक्वेंस, इस अमीनो एसिड सीक्वेंस से आपको एक काम करना है, आपको ये देखना है कि what is the homology, what is the homology of the protein, ये प्रोटीन किससे मैच कर रहा है, ठीक है। ऑब्वियस है ये, ठीक है, ऑब्वियस है। तो जिससे वो मैच कर रहा है दैट इज योर होमोलॉग, ठीक है, होमोलॉग। अब जब आप ये सर्च करेंगे होमोलॉग, तो ये विद इन अ स्पीसीज होना, विद इन अ स्पीसीज रहेगा, विद इन अ स्पीसीज यानी अगर ह्यूमन का है तो ह्यूमन के साथ आप कंपेयर करेंगे, ठीक है। देन आपके पास जिसका अमीनो एसिड सीक्वेंस है, अमीनो एसिड सीक्वेंस है, उसका पहले या प्रायर प्रायर प्रोटीन स्ट्रक्चर है क्या, ठीक है, नहीं है, इसीलिए आप उसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर एनालाइज कर रहे हो, या फिर आपने अपने सीक्वेंस में कुछ म्यूटेशंस किए हैं इसलिए आप उसका प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ये सारी चीजें करके आप उसको कंसिडरेशन में कर रहे हैं। तो अगर आपके अमीनो एसिड सीक्वेंस का प्रायर प्रोटीन स्ट्रक्चर अवेलेबल है एंड दैट टू इन अ विद इन अ स्पीसीज, विद इन अ स्पीसीज यानी उसी स्पीसीज में है, तो आपके लिए ये डायरेक्ट टेम्पलेट हो गया, क्या हो गया, डायरेक्ट टेम्पलेट है। डायरेक्ट टेम्पलेट होने के कारण आपको, आप चाहो तो इसी 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 टेम्पलेट को यानी इसी प्रोटीन को जो जिसका 3D स्ट्रक्चर अवेलेबल है वही डायरेक्टली एनालिसिस में ले सकते हैं, ठीक है। पर आप जनरली ऐसे सिचुएशन में प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन करते ही नहीं, क्यों, क्योंकि आपका प्रायर प्रोटीन स्ट्रक्चर अवेलेबल है एंट्री में, तो फिर आप उसी प्रोटीन का फिर से प्रोटीन क्यों बनाएंगे, ठीक है। तो जनरली ऐसी सिचुएशन नहीं होती, हाँ, पर ऐसा सिचुएशन अराइव हो सकता है अगर आपने कोई म्यूटेशंस रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है, म्यूटेशंस इन अ सीक्वेंस, आपका सीक्वेंस और जिसका 3D स्ट्रक्चर अवेलेबल है विद इन अ स्पीसीज, उसके अंदर में सीक्वेंस वेरिएशन है, तो हाँ डेफिनेटली आप उसको प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन में लेके जा सकते हैं। पर अगर सेम हो तो आपको करने की जरूरत नहीं, आप वही प्रोटीन स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। अनदर सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपके पास में जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है वो सीक्वेंस का विद इन अ स्पीसीज कोई होमोलॉग नहीं, यानी विद इन अ स्पीसीज उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उसका स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। देन व्हाट यू विल डू, देन वी यू विल चेक इट विथ बिटवीन द स्पीसीज, ठीक है। आप किसी दूसरे को अंदर, दूसरे स्पीसीज के अंदर उसको चेक करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान के चलिए कि आपके पास में अल्डोरेज ए है और वो चिंपांजी का आप चेक देखना चाहते हैं, बट चिंपांजी का खुद के अंदर नहीं है, तो आप आपका सीक्वेंस जो चिंपांजी वाला है वो आप कंपेयर करेंगे होमोसेपियन के अल्डोरेज के स्ट्रक्चर के साथ में, एंड उसके बेसिस पे आप 3D स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो जो टेम्पलेट सर्च है वो डायरेक्ट हो सकता है अगर बिटवीन द स्पीसीज हो, और इनडायरेक्ट हो सकता है अगर बिटवीन द स्पीसीज हो, ठीक है। तो ये पहली चीज है। सो व्हाट इज योर फर्स्ट रिक्वायरमेंट, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज आई हैव अमीनो एसिड सीक्वेंस, ठीक है, आपके पास में अमीनो एसिड सीक्वेंस होना चाहिए। ये सीक्वेंस को हम चेक करेंगे कि कौन से प्रोटीन के साथ बेस्ट होमोलॉग दिखाता है, और जिसके साथ होमोलॉग दिखाता है उसका 3D स्ट्रक्चर अवेलेबल होना चाहिए, 3D स्ट्रक्चर अवेलेबल रहा तो ही हम उसको आगे लेके जा सकते हैं। जिससे भी मैच कर रहा है उसका 3D स्ट्रक्चर अगर हमको मिल गया तो हम उस स्ट्रक्चर को कहेंगे टेम्पलेट, स्ट्रक्चर को कहेंगे टेम्पलेट। सो हमारे अमीनो एसिड सीक्वेंस के लिए जिसका मैच मिला उसका 3D स्ट्रक्चर विल एक्ट लाइक अ टेम्पलेट। नाउ दिस टेम्पलेट विल बी यूटिलाइज्ड, ठीक है, we will use template
फॉर स्ट्रक्चर बिल्डिंग। हम उसका स्ट्रक्चर बिल्डिंग करेंगे। तो कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मान के चलिए कि कोई एक स्ट्रक्चर है आपके पास, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। ये आपके पास एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। आपके पास एक सीक्वेंस था, ठीक है। ये सीक्वेंस किसी से मैच हुआ, ठीक है, और ये हमारे लिए कौन बन गया, टेम्पलेट। अब इस टेम्पलेट का 3D स्ट्रक्चर अवेलेबल है हमारे पास, राइट। और ये RCSB PDB में अवेलेबल है। क्योंकि हमारे सीक्वेंस मैच कर रहे हैं, तो हर एक अमीनो एसिड भी उसी तरह अरेंज करा जा सकता है इस क्वेश्चन का, क्वेरी का, जिस तरह से इस टेम्पलेट का है। तो इसका जो ए होगा कहीं ना कहीं तो यहाँ अवेलेबल होगा, इसका ये जो जी होगा ये कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा, राइट। इसका जो डी है वो भी कहीं ना कहीं अरेंज होगा, डी। तो हमारा भी ए, अगर यहाँ ए है तो इस हमारे सीक्वेंस का भी ए हम क्या करेंगे, यही रखेंगे। उनके इसमें एच है, हमारे इसमें जी है, तो हम यहाँ एच रखेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, उसको मॉडल करेंगे, ठीक है, या थ्रेड करेंगे। जैसे जैसे सीक्वेंस मैच होगा उसी जगह पे उसको रखते जाएंगे। रिजल्टेंट क्या होगा, धीरे 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 ये पूरा ऐसा स्ट्रक्चर पैरेलली बनाएंगे हम उसके। इसको बोलते हैं मॉडलिंग, ठीक है। यानी इसी को फॉलो करते हुए, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए मॉडलिंग बनाएंगे। और अल्टीमेटली आपका एट द एंड ऑफ द सेशन आपको दिखेगा, यहाँ पे आपका एक सेकेंडरी मॉडल बन गया है, ठीक है। यानी एग्जैक्ट उसकी नियरली क्या बनेगी, कॉपी बनेगी कुछ इस तरह, विद सम वेरिएशन, ठीक है, विद सम वेरिएशन। यानी आपने टेम्पलेट का इस्तेमाल किया, ठीक है, टेम्पलेट का इस्तेमाल किया और देन क्वेरी का स्ट्रक्चर बनाया। क्वेरी का स्ट्रक्चर कहाँ है, ये। दिस विल रिमेन अ वेरी क्लोज पिक्चर ऑफ द टेम्पलेट। और यहाँ पे सारे अमीनो एसिड उसी तरह रखे जाएंगे जिस तरह से टेम्पलेट में रखा गया है। रिजल्ट आपको भी आपके अननोन सीक्वेंस का, जिसका 3D स्ट्रक्चर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से डिटरमाइन नहीं किया गया बट कॉम्पिटेशनली डिटरमाइन किया गया है, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन मेथड से डिटरमाइन किया गया, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉडल या प्रेडिक्टेड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। याद रखिए, मॉडल या प्रेडिक्टेड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो यहाँ पे देखिए कैसे हो गया अमीनो एसिड सीक्वेंस। हमने होमोलॉग ढूंढा, टेम्पलेट, टेम्पलेट के बेसिस पे हमने स्ट्रक्चर बिल्डिंग की, यानी किया होमोलॉजी मॉडलिंग। हमने उसकी होमोलॉजी मॉडलिंग किया और उसके बाद में आपके पास में क्या आ जाएगा, मॉडल। मॉडल दैट टू बी ना 3 डायमेंशनल। अगला काम ये रहेगा कि इसका हम क्या करेंगे, रामाचंद्रन प्लॉट, ठीक है। इसका रामाचंद्रन प्लॉट करेंगे एंड रामाचंद्रन प्लॉट के बेसिस पे हम उसकी स्ट्रक्चरल क्वालिटी डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल क्वालिटी डिटरमाइन हो जाने के बाद में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं रिसर्च में एज अ मॉडल या प्रेडिक्टेड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इवन तो ये 100% करेक्ट नहीं रहता, बट 80% के ऊपर इसकी कॉन्फिडेंस इंटरवल होती है, विच डिपेंड्स ऑन अगेन ऑन रामाचंद्रन प्लॉट एनालिसिस। रामाचंद्रन आपको क्या बताता है उसके बेसिस पे वो डिटरमाइन करेगी। सबको समझ रहा है, क्लियर है सबको? कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है किसी को? कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लो, आगे जाते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? व्हाट इज द एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन क्या है ये थोड़ा समझ लीजिए। इसका पहला एप्लीकेशन ये है कि सबसे पहली बात है कि ये फास्ट है, ठीक है, ये बहुत फास्ट है। सेकंड थिंग इज ये इन सिलिको है, यानी आप कंप्यूटेशनली इसको कर सकते हैं।
इन सिलिको है, कंप्यूटेशनली आप इसको कर पा रहे हैं. थर्ड थिंग इज दैट यू डोंट रिक्वायर chemicals, right? Don't require chemicals. Fourth thing is that it can be useful for the proteins who can't be crystallized. इन प्रोटीन के लिए अच्छा है जिनको क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते, और खासकर ये उनके लिए अप्लीकेबल है जहाँ पे प्रोटीन आपका कॉम्प्लेक्स में रहता है. ठीक है, दे रिमेन इन अ कॉम्प्लेक्स. तो ये सारी चीजें इस प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन को एक एप्लीकेशन बनाती है. ठीक है, यूजफुल बनाती है. अगर हम इस ये नहीं होता तो हम बहुत सारे अभी भी ड्रग्स नहीं बना पाते. ठीक है, तो इसलिए प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन जो है वो बहुत काम की चीज है. ठीक है, then let's go for the practical part. How to do that? So प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन करने के लिए हम एक सर्वर यूज करेंगे, PS2 प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन सर्वर. ठीक है, PS2 प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन सर्वर ये इस्तेमाल करेंगे. एंड ये सर्वर क्या करता है, ये सारी चीजें करेगा. ठीक है, सबसे पहले आपको उसको क्या देना है, अमीनो एसिड सीक्वेंस देना है. अमीनो एसिड सीक्वेंस देने के बाद में वो आपके अमीनो एसिड सीक्वेंस को होमोलॉजी सर्च करेगा, यानी RCSB PDB डेटाबेस का ब्लास्ट करेगा. वो हो जाने के बाद में वहां पे होमोलॉग अगर उसको मिल गया, टेम्पलेट मिल गया, तो उसके टेम्पलेट के बेसिस पे स्ट्रक्चर बिल्डिंग करेगा. स्ट्रक्चर बिल्डिंग करने के बाद में आपको एक होमोलॉगस मॉडलिंग किया हुआ 3D मॉडल प्रोटीन स्ट्रक्चर का मिल जाएगा. ठीक है, यहाँ तक का जो पार्ट है वो आपको ये सॉफ्टवेयर करा के देगा. एक चीज हमेशा याद रखिए, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन ये सिर्फ टर्शियरी स्ट्रक्चर देता है. ठीक है, क्या देता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर. तो टर्शियरी स्ट्रक्चर ही मिलेगा आपको, इसमें कभी भी आपको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा. ठीक है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या फर्क है बताएंगे कोई? क्या फर्क है बताएंगे? टर्शियरी स्ट्रक्चर बताया था ना मैंने कल. कोई भी एक बता सकता है, व्हाट इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर, व्हाट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर? ठीक, मैं ये बता देता हूँ. हमने पढ़ा था कल कि किसी भी प्रोटीन को फंक्शन करने के लिए एटलीस्ट वन पॉलीपेप्टाइड की रिक्वायरमेंट है. तो अगर आपका प्रोटीन सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड पे फंक्शनल है तो वह टर्शियरी है. ठीक है, टर्शियरी प्रोटीन है. और अगर उसको मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड की रिक्वायरमेंट है, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, तो वो हो गया क्वाटरनरी. है ना, उसमें हमने पढ़ा था होमोपॉलीमर एंड हेट्रोपॉलीमर. ठीक है, तो याद रखिए कि प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन जो है वो कभी भी आपको टर्शियरी स्ट्रक्चर तक ही दे सकता है, वो कभी भी आपको प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं देगा. यानी वो आपको कभी भी यहाँ पे मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड का कभी भी आपको मॉडल नहीं मिलेगा. ये उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है. ठीक है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, क्योंकि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं देता. बट मोस्ट ऑफ द प्रोटीन जो होते हैं वो क्वाटरनरी मोड में होते हैं, इसलिए हमको उसको बाद में जोड़ना पड़ेगा. और जोड़ने के बाद में भी हम उसको रियली डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वो एग्जैक्टली नेचर में क्वाटरनरी मोड में कैसे हो. चलिए, तो अब हम देखते हैं
protein structure prediction. PS2 प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन सर्वर, नाम लिख लीजिए आप. So this is your protein structure prediction server, PS2 प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन सर्वर. और ये आपका नेशनल शियाओटुंग यूनिवर्सिटी ने बनाया हुआ सर्वर है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे पहली बात यह है कि हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली क्या है. सबसे पहली बात है कि इट्स अ सर्वर. ओके, ये सर्वर है जो क्या कर सकता है, होमोलॉजी मॉडलिंग. अभी हमने ये देखा था होमोलॉजी मॉडलिंग क्या है. होमोलॉजी मॉडलिंग यानी अगर एक का प्रोटीन का स्ट्रक्चर पता है और एक प्रोटीन सीक्वेंस का स्ट्रक्चर हमको पता करना है, और अगर वो दोनों प्रोटीन एक दूसरे से होमोलॉग है, मैच करते हैं, तो एक जिसका स्ट्रक्चर पता है उसका स्ट्रक्चर का बेस लेके हम अननोन प्रोटीन का यानी न्यू प्रोटीन्स का जिसका स्ट्रक्चर पता नहीं है उसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं थ्रू अ प्रोसेस नोन एज होमोलॉजी मॉडलिंग. ठीक है, या उसको थ्रेडिंग भी कहा जाता है. ये सारा चीज यहाँ पे करा जा सकता है और ये ऑटोमेटेड है, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं. एक मैनुअल होमोलॉजी मॉडलिंग सर्वर भी आता है. ठीक है, ठीक है. तो मॉडलर करके उसका नाम है मॉडलर. मॉडलर ये एक मैनुअल प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन सर्वर है जहाँ पे आपको मैन्युअली सारी डेटा इनपुट करनी है और रिजल्टन आपको स्ट्रक्चर मिलेगा. ठीक है, बट आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये ऑटोमेटेड है. इसने भी मॉडलर को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है खुद के अंदर. ठीक है, और उसी का सिस्टम का इस्तेमाल करके वो डिजाइन करता है. So what is the process? It uses a new substitution matrix that is known as S2A2, which combines both sequence and secondary structure information for detection of homologous proteins. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सीक्वेंस होमोलॉजी है वो तो वो कंसिडर कर ही रहा है, और साथ ही साथ में वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की भी इंफॉर्मेशन स्टडी में ला रहा है. ठीक है, कल हमने जहाँ देखा था कि दो प्रोटीन्स को जब कंपेयर किया था हमने, तो कुछ कुछ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में वेरिएशंस आपको दिख रहे थे. वो भी कुछ कुछ इसी तरह होता है. सिर्फ वहाँ पे फर्क ये है कि वहाँ पे दोनों के स्ट्रक्चर्स हमको पता थे और हम दोनों के स्ट्रक्चर्स को एक के ऊपर एक ओवरलैप किया था, और यहाँ हमारे पास एक का सीक्वेंस है, एक का स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो ये जो मॉडल बनाते हैं ये दोनों चीजों का इंफॉर्मेशन का मिक्सचर कराते हैं, सीक्वेंस और सेकेंडरी स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन. ठीक है, फॉर द डिटेक्शन ऑफ होमोलॉगस प्रोटीन. ठीक है, एंड देन विथ रिमोट सिमिलैरिटी एंड टारगेट टेम्पलेट अलाइनमेंट. तो ये मैंने जैसे आपको बताया. ठीक है, पहले मैच करेंगे, अगर मैच मिल गया तो फिर उसका टेम्पलेट लेंगे, उसको टेम्पलेट की तरह लेंगे. Then the final three-dimensional structure is built using a homology modeling package known as modeler. ठीक है, मॉडलर क्या है समझ लीजिए. ठीक है, मॉडलर इज अ होमोलॉजी और कंपैरेटिव मॉडलिंग ऑफ प्रोटीन थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर. ठीक है, क्या करता है ये, कंपैरेटिव मॉडलिंग करता है. द यूजर प्रोवाइड्स एन अलाइनमेंट ऑफ द सीक्वेंस, यानी आपको क्या देना है, सीक्वेंस देना है, टू बी मॉडल विद नॉन रिलेटेड स्ट्रक्चर. आपको आपके सीक्वेंस को नॉन स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करना है, और मॉडलर विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट्स द मॉडल बेस्ड ऑन द ऑल नॉन हाइड्रोजन एटम्स. ये उसका अल्टीमेट आउटपुट है. देन आफ्टर जनरेटेड अ प्रेडिक्टेड मॉडल, द प्रोग्राम ProQ and ProQRS were used to evaluate the quality of this model. जब आपका मॉडल बन जाता है मॉडलर से तो उसकी क्वालिटी डिटरमाइन करनी पड़ेगी. जैसे हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में रामाचंद्रन प्लॉट यूज करते हैं, उसी तरह यहाँ पे हम ProQ और ProQRS यूज करते हैं, which gets the evaluation, and that based on that you will get the LG score and max subscore. And then finally the predicted model was displayed as Axtex viewer and automatically sent to the user. Axtex user यानी ये व्यूअर है एक्चुअली, जैसे कल हमने देखा था CNI 3D
उसी तरह ये भी व्यूअर है, ठीक है, समझा। सो आपको तो ये अबाउट दिस। इसका एक नया वर्जन भी आया है, अभी नया वर्जन है PS2 वर्जन 3.0, वो भी हम देखेंगे, पर पहले जनरल वाला देखते हैं। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? इसमें कुछ ज्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं। सबसे पहली बात है कि आप ईमेल आईडी दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आपको आपका रिजल्ट बाद में चाहिए या फिर मेल पे चाहिए तो आप उसको मेल पुट कर दीजिए। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं चाहिए तो कीप इट ब्लैंक, क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं है, ये स्टार रहना मतलब है या ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। देन टारगेट नेम, आप चाहो तो इसको कुछ नाम दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा टू फाइंड। देन यू हैव टू पुट अप योर प्रोटीन सीक्वेंस जिसका 3D स्ट्रक्चर आपको पता करना है, ठीक है, यानी इस सीक्वेंस से उसका 3D स्ट्रक्चर बनने वाला है, तो सबमिट करेंगे। आफ्टर सबमिटिंग यहाँ पे आपको दिखेगा सबसे पहले क्या क्या हो रहा है। देखिए अभी जो स्टेट चल रहा है वहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करा जा रहा है, यानी आपके अमीनो एसिड्स में कौन से टाइप के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होंगे और वो आपका सीक्वेंस किससे मैच कर रहा है, ये वहाँ पे पता किया जा रहा है। इट विल टेक सम टाइम। अभी देखिए टेम्पलेट सर्च हो रहा है, टेम्पलेट सर्च यानी आपका सीक्वेंस किससे बेस्ट मैच कर रहा है ये सर्च हो रहा है, ठीक है, जिसका 3D स्ट्रक्चर अवेलेबल है उसी को हम टेम्पलेट की तरह मानेंगे यहाँ पे, बाकी किसी को भी टेम्पलेट की तरह नहीं लेते, तो इसलिए ये सर्वर इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब आपका स्ट्रक्चर मॉडलिंग हो रहा है, यानी अब उसका स्ट्रक्चर बन रहा है उसके बेसिस पे, यानी मॉडलर काम कर रहा है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना रहा है उसका। लीजिए रिजल्ट आ गया हमारे सामने। नाउ फर्स्ट थिंग, हम हमने ये सीक्वेंस इनपुट में दिया है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। नाउ दिस सीक्वेंस is having this type of secondary structure arrangement, ठीक है। सी यानी कॉइल है, ई यानी अल्फा हेलिक्स है, एच सॉरी बीटा प्लेटेड शीट है और एच यानी अल्फा हेलिक्स है, ठीक है। सी यानी कॉइल, ई यानी बीटा प्लेटेड शीट और एच यानी अल्फा हेलिक्स, ठीक है। तो हर एक अमीनो एसिड कौन से सेकेंडरी स्ट्रक्चर में है यहाँ पे पुटअप किया हुआ है। देन जो मॉडल आपका बना, ठीक है, वो एग्जैक्ट मॉडल कितने सीक्वेंस का है, यानी कहाँ से कहाँ तक लिया है यही उसने बताया। तो यहाँ से लेके यानी इस सीक्वेंस से लेके यहाँ तक ही उसका 3D स्ट्रक्चर बना है, इस रीजन का 3D स्ट्रक्चर और इस रीजन का 3D स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, ठीक है। यानी आपका पूरा क्वेरी प्रोटीन में इतना पार्ट और इतना पार्ट स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करता, हो सकता है कि उसका काम कुछ और हो, ठीक है, सिग्नलिंग सीक्वेंस हो सकता है या कुछ हो सकता है, इसलिए शायद उसका स्ट्रक्चर आपके पास नहीं है। फिर जिस सीक्वेंस से आपका स्ट्रक्चर बना या जिस सीक्वेंस के स्ट्रक्चर से आपका स्ट्रक्चर बना वो ये है 2I46A। ये कौन है देख लेते हैं, ये आपको RCS भी पीडीबी में लेके जाएगा। जिस प्रोटीन से आपका सीक्वेंस मैच हुआ वो प्रोटीन है क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन TPP1, यानी TPP1 प्रोटीन जो है उससे आपका प्रोटीन मैच हुआ और ये है टेम्पलेट, ठीक है। Am I audible? Yes, sir. Okay. यहाँ पे थोड़ा हैंग हो गया था, एक मिनट चल नहीं रहा है।
सो ये जो T2I46A है, ये हमारा टेम्पलेट है, ठीक है। एक चीज याद रखिए, 2I46 ये पूरा प्रोटीन है, और इसके अंदर कितने चेन्स है, यानी ये क्वाटरनरी है या टर्शरी, ये देख लीजिए, ठीक है। देखिए इसके अंदर 2 चेन्स है, तो ये क्वाटरनरी है या टर्शरी प्रोटीन है, बताइए। इज दैट अ क्वाटरनरी प्रोटीन और टर्शरी प्रोटीन? बोलिए, कोई तो बोलिए। टर्शरी। टर्शरी कैसे रहेगा? एक चेन है, हमेशा याद रखिए, अगर एक ही चेन है पॉलीपेप्टाइड की तो टर्शरी रहेगा। अब इसके पास कितनी चेन है? 2। दो दो। चेन्स है ना, ए बी है, तो हमेशा याद रखिए एक से ज्यादा चेन होगा तो डेफिनेटली वो क्वाटरनरी है। और एक चीज याद रखना है कि ए और बी उन्होंने बोला है, और दोनों की लेंथ कितनी दी है? 161 ही दिया है, कोई वेरिएशन दिया है क्या? नहीं। इसका मतलब कौन है ये? होमोपॉलीमर है, हेट्रो? होमो। हाँ, होमोपॉलीमर है। अगर दो अलग अलग लेंथ देते हैं तो समझ जाना कि हेट्रोपॉलीमर है। तो इसके ए चेन से आपका सीक्वेंस मैच हुआ है, ठीक है। इसके ए चेन से आपका सीक्वेंस मैच हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2I46A, दिख रहा है, ए लिखा हुआ है, यानी ए चेन से आपका सीक्वेंस मैच हुआ है, बी चेन से सीक्वेंस मैच नहीं हुआ है। अब ऐसा ऐसा नहीं है कि बी चेन से भी मैच नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो दोनों सेम है, यानी दोनों प्रोटीन्स, दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन सेम, ठीक है। तो 2I46 ये टेम्पलेट है, प्रोटीन है, यानी ये नाम है उसका TPP1, जिससे आपका ये प्रोटीन मैच हुआ, राइट। कितना परसेंट मैच हुआ है? 87% मैच हुआ, अलाइन हुआ है, दिख रहा है, 87% अलाइन हुआ है। और आइडेंटिटी कितनी मिली? स्ट्रक्चरल आइडेंटिटी 17.61, अलाइन 87% हुआ है, यानी 87% सीक्वेंस मिला है उस इस 3D स्ट्रक्चर में। ये जो 3D स्ट्रक्चर है, ये 3D स्ट्रक्चर का सीक्वेंस आपके सीक्वेंस से कितना मैच हुआ है? 87%, ठीक है। और उसमें भी उसकी आइडेंटिटी कितनी है? 17.61, ये बिट स्कोर है उसका मैच का। ई वैल्यू ये आपको पता ही है, ब्लास्ट के बेसिस पे है। प्रो क्यू और प्रो क्यू आर एस, ये हम इसकी अभी जरूरत नहीं है, हम उसका रामाचंद्रन प्लॉट करने ही वाले, इसलिए इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अल्टीमेटली आपने यहाँ प्रोटीन सीक्वेंस दिया, और इस प्रोटीन सीक्वेंस का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिल रहा है ये वाला। तो ये है आपका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रोटीन, ठीक है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं राइट क्लिक करके, सेव इमेज, और साथ ही साथ में उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ से मिल गया है। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओपन करके आप उसको सेव कर सकते हैं। ऑलरेडी सेव है पीडीबी मॉडल में, वो सेव हो जाएगा, ठीक है। तो पीडीबी फॉर्मेट में वो सेव हो गया है। आप उसको अर्गस लैब में, या फिर मैंने जो कल सॉफ्टवेयर बताए थे एसएलराइज डीएस विजुअलाइजर में, आप किसी में भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और डाउनलोड हो जाने के बाद में आराम से उसको आप विजुअलाइज कर सकते हैं। देखिए ये उसका मॉडल आ गया, ये उसका प्रोटीन स्ट्रक्चर है। तो आपने सीक्वेंस दिया था, और अल्टीमेटली आपने उसको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग अ होमोलॉजी मॉडलिंग कंसेप्ट। अब आप इसको ऊपर में डॉकिंग कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसका कैथ एनालिसिस कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एनालिसिस आप आराम से कर सकते हैं। आप इसको सुपर इम्पोज कर सकते हैं, है ना। सुपर इम्पोज करके देखिए क्या इसको,
करके देखना है क्या? यस सर। चलो करके देखते हैं। इसको सेव करना पड़ेगा पहले, फाइल, सेव एज, मॉडल बंद कर दिया। हमने सॉफ्टवेयर यूज किया था, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया था उसके लिए? नाम बताइए मॉडलिंग के लिए, कौन सा था? भूल गए। CNI 3D है ना? सर आईसीएन है वो। हम्म, आई आवाज नहीं आ रहा। हेलो, आईसीएन है सर। ICN 3D है ना? हाँ सर। ICN 3D, ICN 3D। तो यहाँ हम करके देखेंगे उस चीज को। बंद कर देते हैं, फाइल, लाइन, स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे उसका कोड चाहिए रहेगा। सबसे पहले हमको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, हमको सीक्वेंस टू स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। ठीक है, सीक्वेंस आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, ये वाला, ये सीक्वेंस है आपका, कॉपी, पेस्ट हियर। ठीक है, और किसके साथ मैच करना है? RCSB PDB में 2i46 अंडरस्कोर ए चेन है ना, ए चेन से करना है लोड। तो इस तरह से आउटपुट आएगा आपको। ठीक है, इस तरह से आपको उसका स्ट्रक्चर दिखेगा। ये भी मॉडल है, देखिए मॉडल बन गया उसका, एग्जैक्ट मॉडल है। ठीक है, तो किस तरह से उसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स है, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। कौन से पॉइंट पे वो मैच हुआ, ये भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो 246A है और ब्लास्ट होके आपके क्वेरी सीक्वेंस से मैच किया, TPP1 से मैच किया उसने, और सिर्फ इतना ही उसका सीक्वेंस मैच उसको मिला है। ये उसका एनालिसिस है पूरा, कि किस तरह से उसका सीक्वेंस मैच आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है,
देखिए आपके सीक्वेंस से उसका कहाँ कहाँ मैच हो रहा है ये दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्चुअली मैच दिखाया गया है और रिजल्टेंट उसका अनोटेशन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो 2i46 का इस्तेमाल करके हमने हमारा जो प्रोटीन मॉडल है वो आप यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। इसको आपने डाउनलोड किया और अब आपके पास में वो रेडी अवेलेबल है, ठीक है। दिस इज ऑफलाइन, अब आपके पास ऑफलाइन है, आप इसके साथ जो चाहे स्टडी कर सकते हैं। तो ये है प्रोटीन स्ट्रक्चर मॉडलिंग, जहाँ पे आपके पास में किसी सीक्वेंस का स्ट्रक्चर बनाना है आपको, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तो ये अप्रोच है, ठीक है। तो किसी ने अगर आपको फ्यूचर में पूछा कि आपके पास सीक्वेंस है और उसका 3D स्ट्रक्चर बनाना है, बना सकते हैं क्या, तो आपको बोलना है हाँ हम बना सकते हैं। द ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट कि उसका सीक्वेंस जिससे मैच करे उसका 3D स्ट्रक्चर अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन। क्लियर, इसमें कोई डाउट है? मेन चीज है कि आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है उसको, ठीक है। अब हमने क्योंकि डाउनलोड कर लिया है उसको, तो आप उसका रामाचंद्रन प्लॉट भी देख सकते हैं, ठीक है। तो रामाचंद्रन प्लॉट एक बार आप जरूर देखिए उसका। तो इसको हम रामाचंद्रन प्लॉट चेक चेक करते हैं कि स्ट्रक्चरल क्वालिटी क्या है उसकी, जिस जो भी प्रेडिक्ट हुआ उसका स्ट्रक्चरल क्वालिटी क्या है। तो हमारा स्ट्रक्चरल क्वालिटी यहाँ से पता चलता है। देखिए कितना सुंदर स्ट्रक्चरल क्वालिटी है ना। अच्छा है स्ट्रक्चरल क्वालिटी या बुरा है, बताइए। सर अच्छा है। अच्छा है। कौन सा एक स्पॉट है जो सही स्पॉट नहीं हुआ है? कौन सा एक अमीनो एसिड है जो स्पॉट नहीं हुआ है प्रॉपरली, या कहाँ पे है? ये रेड कलर वाला है ना। एक अमीनो एसिड यस है सर। जो प्रॉपरली अलाइन नहीं हुआ है, बाकी बहुत अच्छे से अलाइन हुआ है। यानी ये प्रिडिक्शन जो है बहुत अच्छे क्वालिटी का है और इसको हम रियली यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये बहुत क्लोज एनालिसिस है और अच्छी क्वालिटी का प्रेडिक्शन आपको मिला हुआ है, ठीक है। और अगर आपको अच्छी क्वालिटी का प्रेडिक्शन मिला है तो प्रोटीन मॉडल भी आप डॉकिंग में यूज कर सकते हो या रिसर्च में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन को कंफर्म करते हो कि आपने सही मॉडल बनाया है या नहीं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए ये प्रोटीन स्ट्रक्चर मॉडल है, ठीक है। ये कभी भी आरसीएसबी पीडीबी में सबमिट नहीं हो सकता। आरसीएसबी पीडीबी जो है ये सिर्फ उन्हीं प्रोटीन्स को एक्सेप्ट करता है जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड हो, ठीक है। फिर भी हमको एक अच्छा मॉडल मिल गया है जिसके बेसिस पे हम स्टडी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन हमने समझ लिया। प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन क्यों करते हैं, कब करना चाहिए, किसके लिए करते हैं, अल्टीमेटली उसका यूज क्या है, ये सब हमने उसका पार्ट कवर कर लिया है। नाउ विल गो फॉर सेकंड टॉपिक, दैट इज सब सेलुलर लोकलाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब सेलुलर लोकलाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। थोड़ा सा समझ लेंगे पहले उसको। ना मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप उसके आंसर दीजिए। सेल में जीन कहाँ होता है?
बताइए, सेल में जीन कहाँ होता है? जल्दी जल्दी बताइए। कहाँ होता है? अरे बताइए। क्रोमोसोम में। हाँ, क्रोमोसोम में होता है, बराबर है। क्रोमोसोम में होता है। क्रोमोसोम कहाँ होता है? इनसाइड सेल। नहीं, सेल में तो है, पर इनसाइड सेल के अंदर भी तो कहीं तो भी क्रोमोसोम है ना। क्रोमोसोम एग्जैक्टली कहाँ पोजीशन है? बताइए, क्रोमोसोम कहाँ होता है? न्यूक्लियस। हाँ न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियस, वही पूछ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमको ये समझना है, अभी हम सब सेलुलर लोकलाइजेशन देख रहे हैं ना, तो हमको हर चीज पता रहनी चाहिए। न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। अब जब जीन एक्सप्रेस होना शुरू करता है, ठीक है, तो उसका प्रोडक्ट कौन है? जब जीन एक्सप्रेस होता है तो प्रोडक्ट कौन है? प्राइमरी प्रोडक्ट कौन है? प्रोडक्ट कौन है? जीन का प्रोडक्ट क्या है? प्रोटीन। नहीं, प्रोटीन तो एंड प्रोडक्ट है। बीच में कौन? mRNA। हाँ, आरएनए बनाता है, एमआरएनए बनाता है, राइट। उसको एमआरएनए भी बोल सकते हैं ना। सो जीन जब एक्सप्रेस होता है तो एमआरएनए कहाँ कहाँ बनता है, ये बताइए मुझे। एमआरएनए फर्स्ट टाइम कहाँ प्रोड्यूस होता है? न्यूक्लियस। वेरी न्यूक्लियस। वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस। स्पेलिंग गलत हो सकती है मेरी, उसको इग्नोर करिए, ठीक है। न्यूक्लियस में होता है। सो जब एमआरएनए न्यूक्लियस में बन गया, फिर वो वहां से कहाँ जाता है? साइटोप्लाज्म। वेरी गुड, वहां से वो साइटोप्लाज्म में जाता है। साइटोप्लाज्म में जाके क्या करता है? राइबोसोम को अटैच। वेरी गुड, राइबोसोम से अटैच हो जाता है। फिर क्या होता है राइबोसोम पे? व्हाट हैपेंस ऑन अ राइबोसोम? राइबोसोम पे क्या होता है? सिंपल है, आखिरी स्टेप क्या होता है आखिरी में? प्रोटीन सिंथेसिस। हाँ, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद में आपका प्रोटीन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द एमआरएनए फॉर्म हो जाता है, प्रोटीन फॉर्म, ठीक है। जब प्रोटीन फॉर्म हो जाता है तो सबसे पहले प्रोटीन कहाँ कहाँ अवेलेबल होता है? कौन सी जगह पे अवेलेबल होता है फॉर्म होने के बाद? या प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है, सिंपल लैंग्वेज में बोलो। इन विच पार्ट ऑफ द? राइबोसोम। हाँ, नहीं राइबोसोम। नहीं, राइबोसोम पे तो हो रहा है, पर राइबोसोम कहाँ है? प्रोटीन, साइटोप्लाज्म। हाँ, वेरी गुड, साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। यानी इसका मतलब है कि ऑल प्रोटीन्स फॉर्म इन द साइटोप्लाज्म। इसका मतलब ये है क्या कि सारे प्रोटीन साइटोप्लाज्म में फॉर्म होते हैं? क्वेश्चन का आंसर बताइए। सारे प्रोटीन, जितने भी प्रोटीन्स फॉर्म होंगे सेल के अंदर, वो साइटोप्लाज्म में ही फॉर्म होंगे, करेक्ट है या नहीं है? हुँ? जितने भी प्रोटीन्स हैं जो सेल के अंदर फॉर्म होते हैं वो साइटोप्लाज्म में ही फॉर्म होंगे, करेक्ट है या नहीं है? यस सर। कोई डाउट? एग्जैक्ट। हाँ, हाँ, एग्जैक्ट साइटोप्लाज्म में ही होंगे सर।
एग्जैक्ट साइटोप्लाज्म में ही होंगे। इसका मतलब है कि सारे के सारे साइटोप्लाज्म में ही होंगे। Yes. अब so all proteins are in cytoplasm, ठीक है, सारे के सारे प्रोटीन जो है वो साइटोप्लाज्म में। बट once they form, ठीक है, once they form they have to travel, क्या करना पड़ेगा उनको, क्या करना पड़ेगा, Travel. they have to travel, ट्रैवल यानी क्या, एग्जैक्टली बता सकते हैं, यानी उनको लोकलाइज्ड होना पड़ेगा, राइट, उनको क्या होना पड़ेगा, लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड यानी अब सेल के अंदर में बहुत सारे पार्ट्स है, राइट, बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे सेल के खुद के पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल वॉल है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इवन एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन है, इतने सारे रीजन्स है सेल के पास में, सेल के पास खुद के अपने इतने सारे ऑर्गेनिलीज है, बॉडीज है, तो इन सबको बोला जाता है ऑर्गेनिली, है ना, हम बोलते हैं ना ऑर्गेनिली, स्ट्रक्चरल पार्ट्स है उसके सेल के, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ऑल दिस। बट इन सब के अंदर जो जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो सब कहाँ फॉर्म हो रहे हैं, Cytoplasm. साइटोप्लाज्म। सो नाउ जब वो बन जाते हैं, क्वेश्चन कम्स, हाउ दे नो, हाउ दे नो दैट आई हैव टू माइग्रेट, ठीक है, एंड few of them don't know how to migrate, यानी जब प्रोटीन्स बन जाते हैं साइटोप्लाज्म में, तो उस उनमें से कुछ प्रोटीन्स को पता रहता है कि मुझे माइग्रेट करना है, यानी वो जाएंगे सेल वॉल पे, सेल मेम्ब्रेन पे, न्यूक्लियस पे, माइटोकॉन्ड्रिया पे, क्लोरोप्लास्ट पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, या फिर आउटसाइड ऑफ द सेल भी जा सकते हैं। पर कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनको बिल्कुल भी पता नहीं रहता कि उनको माइग्रेट करना है, तो इसके बेसिस पे, और सर कौन से बेसिस पे उनको ये डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है, हाउ दे डिसाइड दैट आई हैव टू माइग्रेट एंड आई डोंट हैव टू माइग्रेट, ठीक है, तो ये है इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये है सब सेलुलर लोकलाइजेशन, ठीक है, एंड प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सब सेलुलर लोकलाइजेशन और प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, यानी प्रोटीन खुद को कैसे पता कर लेता है कि मुझे यहाँ जाना है और यहाँ फंक्शन करना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे, मान के चलते हैं कि आपके आपके न्यूक्लियस के अंदर एक जीन है जो सेल सरफेस प्रोटीन बना रहा है, कौन सा प्रोटीन बना रहा है, Cell surface protein. हाँ, सेल सरफेस प्रोटीन, यानी वो प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्पैन करेगा, ठीक है, मान के चलते प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्पैन करता है, तो आपके एक न्यूक्लियस के अंदर एक जीन है जो सेल सरफेस प्रोटीन बना सकता है, और ये जीन जो है अब एक्सप्रेस हो गया, ठीक है, जब ये एक्सप्रेस होगा तो डेफिनेटली उससे एमआरएनए प्रोड्यूस होगा, एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आएगा, साइटोप्लाज्म पे अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर कौन बनेगा, उसका प्रोटीन, और प्रोटीन कौन सा रहेगा, सेल सरफेस प्रोटीन, है ना। अब क्योंकि उसका नाम ही है सेल सरफेस प्रोटीन, पर वो अभी कहाँ पे अवेलेबल है, Cytoplasm. साइटोप्लाज्म में, पर जैसे ही वो बनेगा उसको पता है मुझे कहाँ जाना है, उसको जाना है सेल मेम्ब्रेन पे यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, सो दे विल स्टार्ट देयर जर्नी, दे विल स्टार्ट देयर जर्नी टुवर्ड्स साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पे जैसे ही वो पहुंचते हैं, ठीक है,
ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पे जैसे ही वो पहुंचते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है उसको रिसीव करेगा। ठीक है, अब जब रिसीव करेगा ना, तो एक बड़े स्पेशल स्टाइल से उसको रिसीव करता है। ठीक है, वहां पे उसके सेल मेम्ब्रेन पे एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है। ठीक है, जिसका नाम है पेप्टाइडेज। ठीक है, और वो स्पेशल टाइप का पेप्टाइडेज होता है जिसका नाम है सिग्नल पेप्टाइडेज। सिग्नल पेप्टाइडेज। ठीक है, ये एक सिग्नल पेप्टाइडेज होता है। इसके दो टाइप होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सिग्नल वो यूज होता है। ठीक है, तो आपका प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बन गया जो सेल मेम्ब्रेन के लिए स्पेसिफिक है। उसने अपना जर्नी शुरू किया टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। जैसे सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचा, उसको एक प्रोटीन ने रिसीव किया जिसका नाम है सिग्नल पेप्टाइडेज 1 और सिग्नल पेप्टाइडेज 2। अब यहाँ होता क्या है, जो प्रोटीन फॉर्म हुआ वो प्रोटीन के पास में एक स्पेशल सीक्वेंस होता है जिसको बोलते हैं सिग्नल सीक्वेंस। ठीक है, सिग्नल सीक्वेंस ये ऐसा सिग्नल होता है। ठीक है, ये एक ऐसा सिग्नल होता है जो उस प्रोटीन को बताता है कि आपको सेल मेम्ब्रेन पे जाना है। ठीक है, तो सिग्नल है, तो सिग्नल के अंदर पैटर्न होता है कि नहीं होता है, बताइए। होता है या नहीं होता है, किसी भी सिग्नल में पैटर्न होता है या नहीं होता है। होता है सर। आप अभी रोज जाते हो ना रास्ते से, तो रास्ते पे सिग्नल लगता है तो उसका पैटर्न होता है, राइट। पहले रेड होता है, फिर येलो होता है, फिर ग्रीन होता है, फिर ग्रीन से फिर से रेड होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है। तो ये पैटर्न है, वो फॉलो करना पड़ता है ना। तो अगर प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन पे जाने वाला है उसको पता है कि मुझे सेल मेम्ब्रेन पे जाना है, तो वो अपने साथ में सिग्नल सीक्वेंस लेके चल रहा है। और वो सिग्नल सीक्वेंस भी क्या है, पैटर्न है। क्या है, पैटर्न। उसके सीक्वेंस में एक पैटर्न है, और वो पैटर्न है LPXEG। ये एक स्पेशल टाइप का पैटर्न है। ये जो भी प्रोटीन के साथ में होगा, ठीक है, ठीक है, यानी ऐसा होगा, यानी LPXTG उसके आगे लगा हुआ है, तो समझ जाना कि ये प्रोटीन कहाँ स्पैन करने वाला है, कहाँ स्पैन करने वाला है, सेल सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन हाँ, तो सेल मेम्ब्रेन वाला जितने भी प्रोटीन है उनके अंदर कौन रहने वाला है, कौन सा पैटर्न रहने वाला है, LPXTG। हाँ, LPXTG पैटर्न। जैसे ही LPXTG आएगा वो समझ जाएगा कि मुझे कहाँ जाना है, सेल मेम्ब्रेन पे। अब जैसे ही वो सेल मेम्ब्रेन पे रीच करेगा, ठीक है, उसको वहां पे किसने रिसीव किया, किसने रिसीव किया, सिग्नल पेप्टाइडेज 1 और 2। हाँ, सिग्नल पेप्टाइडेज 1 और 2 ने रिसीव किया उसको। रिसीव करने के बाद ये सिग्नल पेप्टाइडेज 1 और 2 क्या है, ये एक्चुअली प्रोटीएज है। क्या है, प्रोटीएज इन नेचर। तो ये LPXTG पैटर्न, ठीक है, LPXTG पैटर्न को तोड़ देगा। ठीक है, विद द मैच्योर प्रोटीन, यानी वो क्या करेगा, यहां से उसको ब्रेक कर देगा और ये LPXTG पैटर्न को हटा देगा आपके मैच्योर प्रोटीन से। ठीक है, अब जैसे ही वो हटा देगा, ये जो प्रोटीन बना ये आपका मैच्योर या फंक्शनल प्रोटीन है, यानी वो उसको प्रो प्रोटीन से मैच्योर प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा। वो सिग्नल सीक्वेंस का काम सिर्फ इतना ही है कि उसको वहां तक लेके जाना है, कहां तक, सेल मेम्ब्रेन तक। जैसे ही सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचेगा, उसको सिग्नल पेप्टाइडेज 1 हटा देगा और आपका जो बचा हुआ प्रोटीन है वो आपका मैच्योर प्रोटीन रहेगा। समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया सबको। तो इसके बेसिस पे वो सब सेलुलर लोकलाइजेशन करते हैं, यानी हर एक लोकलाइजेशन के लिए, न्यूक्लियस के लिए एक पर्टिकुलर पैटर्न है, एंडोप्लाज्मिक के लिए एक पर्टिकुलर पैटर्न है, क्लोरोप्लास्ट के लिए एक पर्टिकुलर पैटर्न है, ऐसे हर एक प्रोटीन का एक पैटर्न है बेस्ड ऑन देयर सबसेलुलर लोकलाइजेशन। अब मुझे ये बताइए, साइटोप्लाज्म के लिए कोई पैटर्न रहेगा क्या, किसी प्रोटीन को साइटोप्लाज्म में ही स्पैन करने तो रहेगा क्या,
फॉर्म साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है। हाँ, इसलिए तो पूछ रहा हूँ कि उसको किसी पैटर्न की जरूरत है क्या? नो सर। नहीं, उसको कोई जरूरत ही नहीं, उसको कहीं माइग्रेट ही नहीं करना है, इसलिए मैंने बोला ना, देखिए यहाँ पे how they know that I have to migrate and few of them don't know how to migrate. उनको माइग्रेशन का पता ही नहीं है क्योंकि उनके पास में कोई भी सिग्नल सीक्वेंस नहीं है। इसलिए साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन के पास में कभी भी आपको सिग्नल सीक्वेंस नहीं मिलेगा। समझ रहे सबको? यस सर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च के फॉर्मेट में, एग्जाम्पल समझाता हूँ। ठीक है, रिसर्च के फॉर्मेट में क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं आपको क्वेश्चन पूछते जाता हूँ, आप उसके आंसर्स दीजिए। मान के चलिए एक होस्ट है, ठीक है, मान के चलिए वो ह्यूमन है, सॉरी, उसकी बॉडी में कोविड का अटैक हुआ, ठीक है, किसका? कोरोना वायरस का अटैक हो गया। तो ये जो वायरस है, ये वायरस अब होस्ट के सिस्टम के अंदर चला गया, ठीक है, होस्ट के सिस्टम के अंदर चला गया। जब होस्ट के सिस्टम के अंदर चला गया है तो सिस्टम के अंदर एक सब सिस्टम है जिसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम, ठीक है, इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करेगी, कोविड कोविड को, राइट? करेगी या नहीं करेगी? करेगी। तो जब सबसे पहला अटैक होता है, फर्स्ट अटैक जब होता है या सेकेंडरी अटैक होता है, ठीक है, ठीक है, या उसके बाद में टर्शरी क्वाटरनरी, एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, कितने भी बार अटैक हो, कोविड जो है, एग्जाम्पल है ये, कोविड जो, ये सबके लिए अप्लीकेबल है, कोविड हो या फिर बैसिलस एंथ्रासिस हो, कोई भी एक ले लें, ठीक है। तो जो फर्स्ट डिटेक्शन होता है, फर्स्ट डिटेक्शन ऑफ वायरस, वो उसके सेल सरफेस से होता है, ठीक है। चलो बैसिलस एंथ्रासिस का लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, किससे होगा? बैसिलस एंथ्रासिस का लेते हैं। तो जो फर्स्ट डिफेंस है या फर्स्ट डिटेक्शन है वो किसका होगा? सेल सेल सरफेस का होगा, राइट? और सेल सरफेस पे कौन है अभी? प्रोटीन है, हाँ या ना? सेल सरफेस पे कौन है? प्रोटीन्स। अभी हमने देखा ना, देखो ना यहाँ पे, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन है सेल सरफेस, किसी भी बैक्टीरिया का सेल सरफेस। तो ये प्रोटीन उसके सेल सरफेस पे रहेंगे, यानी सेल मेम्ब्रेन पे रहेंगे, बराबर। तो सबसे पहले जो सेल सरफेस पे प्रोटीन्स होते हैं उन्हीं को डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है, और सबसे बाद में साइटोप्लाज्म वालों को। तो जितने भी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं किसी भी बैक्टीरिया के लिए, वो सेल मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन यानी सेल सरफेस प्रोटीन के खिलाफ होता है, ठीक है। तो अब मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे एक वैक्सीन बनानी है, वैक्सीन, आई हैव टू डिजाइन अ वैक्सीन कैंडिडेट। क्या बनाना है मुझे? मुझे क्या बनाना है? क्या बनाना है मुझे? वैक्सीन। वैक्सीन। वैक्सीन अगेंस्ट हूम? बैसिलस एंथ्राइटिस। तो ये मेरा पैथोजन है, ठीक है, पॉजिटिव एजेंट है। तो वैक्सीन बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? किसकी जरूरत होती एंटीजन एंड जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म करेंगे। है? हाँ, एंटीजन चाहिए ना। तो बैसिलस एंथ्रासिस जो है वो बहुत सारे प्रोटीन बनाता है, कम से कम 4000 प्रोटीन बनाता है ना? कितना? 4000। 4000। वो 4000 में से मुझे एक या दो एंटीजन चूज करने, ठीक है, वन और टू। अब मुझे बताइए कैसे चूज करूं? कैसे चूज करेंगे?
मुश्किल है ना? सबसे बैसिलस एंथ्रेसिस जो उसका जो जीनोम है वो 4000 से ज्यादा प्रोटीन बनाता है। उसमें से सिर्फ मुझे एक या दो सिलेक्ट करने हैं, ठीक है? तो मैं कैसे सिलेक्ट करूं? सबसे पहले क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सबसे पहला क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि भले ही उसके 4000 प्रोटीन्स हैं, क्या मैं इनको सब सेलुलर लोकलाइजेशन कर सकता हूँ कि नहीं? क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? सब सेलुलर लोकलाइजेशन, मुझे इन 4000 प्रोटीन्स को लोकलाइज करना पड़ेगा। मैंने जो वैक्सीन रिसर्च में पढ़ा, वैक्सीन रिसर्च में वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो सेल सरफेस प्रोटीन होते हैं वो सबसे अच्छे क्या होते हैं? हाँ, सबसे अच्छे एंटीजेंस होते हैं। तो तो 4000 प्रोटीन्स में से कितने सेल सरफेस प्रोटीन है ये ढूंढना है। क्वेश्चन समझा क्या मेरा? 4000 प्रोटीन्स में से कितने सेल सरफेस प्रोटीन्स है ये ढूंढना है। तो मैं क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करूं? बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। 4000 प्रोटीन बनाता है वो, उसमें से मुझे सेल सरफेस प्रोटीन ही पहले सिलेक्ट करने हैं, तो क्या करना चाहिए? कौन सा सर्च करना चाहिए? कौन सा सर्च करना चाहिए? समझा क्या? आपको समझा क्या बोल रहा हूं मैं? LPXTG LPXTG पैटर्न सर्च क्यों करूंगा मैं? क्यों करना चाहिए LPXTG पैटर्न सर्च? क्योंकि सर सेल सरफेस प्रोटीन पे जब वो प्रोटीन जाके अटैच होगा तो हाँ, सिग्नल पेप्टिडेज वो प्रोटीन पे LPXTG पैटर्न अटैच कर देगा और फिर नहीं सिग्नल वो LPXTG पैटर्न जॉइंट हो जाएगा, फिर सिग्नल पेप्टिडेज उसको ब्रेक करेगा और वो प्रो प्रोटीन मैच्योर प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, इसका मतलब ये है ना कि जिन जो भी प्रोटीन में LPXTG पैटर्न है वो सेल सरफेस प्रोटीन है। यस सर। समझा क्या? तो ये मार्कर हो गया ना उनके लिए। क्या मार्कर हो गया? मार्कर। हाँ, LPXTG इज बिकम अ मार्कर। यानी आपको ये 4000 प्रोटीन्स में से सेल सरफेस प्रोटीन्स निकालने हैं तो कौन सा सर्च करना पड़ेगा? LPXTG। जितने भी प्रोटीन्स होंगे उन सब में LPXTG ढूंढना पड़ेगा। जिन जिन में होगा वो सारे सेल सरफेस प्रोटीन्स होंगे। आपको समझ रहा है क्या? समझा या नहीं समझा? समझा। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, तो अब हमने क्या समझा कि ये जो सेल सरफेस प्रोटीन है इनको हम आराम से ढूंढ सकते हैं और ये हमारे लिए वैक्सीन कैंडिडेट हो गए। उसी तरह और एक चीज होती है ट्रांस मेम्ब्रेन हेलाइसिस, ठीक है? ट्रांस मेम्ब्रेन हेलाइसिस, ट्रांस मेम्ब्रेन हेलाइसिस यानी क्या? देखिए, आपका जो भी सेल है बैक्टीरियल सेल हो सकता है, ठीक है? उसके पास में दो मेम्ब्रेन्स है, बराबर? बाहर की सेल वॉल, ये सेल वॉल है, और उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है?
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो भी प्रोटीन स्पैन करेगा यानी रहेगा, वो खुद को इस तरह शेप में लेता है कि उसके हेलाइसिस फॉर्म होते हैं। ये एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन है, ठीक है, या बाहर का रीजन है। ये इंट्रा सेलुलर रीजन है, ठीक है, अंदर का रीजन है। और ये है ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन, यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपका प्रोटीन किस तरह स्पैन करता है, देखा होगा ना आपको प्रोटीन ऐसा, राइट, या फिर कभी कभी ऐसे स्पैन करता है। तो इन प्रोटीन्स को कहा जाता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स या ट्रांस मेम्ब्रेन हेलाइसिस स्पैनिंग प्रोटीन। तो इतना जितने जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, ये अमीनो एसिड्स और ये अमीनो एसिड्स, जितने भी अमीनो एसिड्स होंगे, ये हाइड्रो कौन होंगे, हाइड्रोफिलिक रहेंगे या हाइड्रोफोबिक? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहेंगे इतने पार्ट में, वो हाइड्रोफिलिक रहेंगे या हाइड्रोफोबिक? यहाँ लिपिड है, ये पूरा लिपिड है ना, समझ रहे हैं? लिपिड कौन है, हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक? बताइए। अरे ऑयल पानी में घुल जाता है क्या? ऑयल जो होता है, ऑयल पानी में घुल जाता है? नो सर। तो लिपिड है ना वो, फैट है, लिपिड है, वाटर सोल्यूबल है नहीं है, हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है? सर हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक क्या रहेगा, हाइड्रोफोबिक यानी वाटर हेटिंग, वाटर को लव नहीं करता। तो यहाँ भी जितने भी अमीनो एसिड्स होंगे ना, ये भी हाइड्रोफोबिक ही रहने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिपिड के साथ उनको रहना है। और ये यहाँ पे जितने भी अमीनो एसिड्स है, ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं? तो जो प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे स्पैन करेगा, उसके ना 9 से 13 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअसली हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है। फिर से थोड़े थोड़े दूर में 9 से 13 अमीनो एसिड हाइड्रोफोबिक होंगे, थोड़े से 13। तो इसका एक पैटर्न है कि कुछ कुछ डिस्टेंस के बाद में फिर से आपको हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड दिखेंगे। ये भी एक पैटर्न ही है, ये भी डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक ट्रांस मेम्ब्रेन एनालिसिस का पैटर्न है जो ढूंढा जाता है। इसके बेसिस पे भी हम बताते हैं कि प्रोटीन प्लाज्मा में स्पैन कर सकता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे सबसेल्युलर लोकलाइजेशन, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स अब हम देखेंगे। ये डिटरमाइन करने के लिए, यानी आपके प्रोटीन के अंदर कौन सा पैटर्न है, ये अगर डिटरमाइन करना है तो आपको, आपके पास सॉफ्टवेयर्स है, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर्स हमको देखने कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं। तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर है सिग्नल पी, दूसरा है लिपो पी, थर्ड है पी सॉर्ट बी और चौथा है टीएमएच। चलिए देखते हैं वन बाय वन। लिपोपी सर्वर, ठीक है। तो ये पहला सर्वर है जो आपको प्रोटीन की सबसेल्युलर लोकलाइजेशन बताता है, खासकर लिपोप्रोटीन और सिग्नल पेप्टाइड डिटेक्ट करता है, ठीक है, स्पेशली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरियल आप स्टडी कर रहे हो तो ये आपको बताएगा कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का लिपोप्रोटीन और सिग्नल पेप्टाइड है या नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो ये करने के लिए एग्जांपल लेते हैं, KGG, तो ये बहुत सारे प्रोटीन्स है इकोलाई के। इन सारे प्रोटीन्स को हम चेक करेंगे कि इसमें कितने प्रोटीन लिपोप्रोटीन्स है, ठीक है। चलिए इसमें से 10-15 मैंने उठा ली, कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने इकोलाई के कुछ 15-20 प्रोटीन्स उठाए और यहाँ पे पुट किए। मुझे ये देखना है कि इन इन कौन से प्रोटीन में
लिपोप्रोटीन है या सिग्नल पेप्टाइड प्रेजेंट है। ठीक है, अब मुझे ऐसे तो पता नहीं चलेगा, इसलिए मुझे एनालाइज करना पड़ेगा। आउटपुट आ गया है, यहाँ लिखा है नो प्लॉट मेड, और यहाँ लिखा है, देखो क्या लिखा है, CYT, यानी ये जो प्रोटीन है नंबर 2 नंबर का प्रोटीन जो है, ये कहाँ स्पैन कर रहा है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, तो जहां जहां CYT लिखा है, इसका मतलब है कि वो प्रोटीन साइटोप्लाज्म में स्पैन कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे स्पैन नहीं कर रहा। ये है सब सेलुलर लोकलाइजेशन, ये हम यहाँ से पता कर रहे हैं। फिर ये यहाँ पे देखिए रिजल्ट आया, 5th नंबर का जो प्रोटीन है आपका, 5th नंबर का प्रोटीन कौन है, ये वाला डोमेन कंटेनिंग प्रोटीन एक्स। ठीक है, ये जो है ये बोल रहा है कि ये लिपोप्रोटीन है। कैसे समझा, यहाँ पे देखिए रिजल्ट आया है SP1, यानी क्या, SP1 यानी क्या, सिग्नल पेप्टाइड 1। हाँ सिग्नल पेप्टाइडेज। ओके, सिग्नल पेप्टाइडेज कहाँ से आ गया भाई, सिग्नल पेप्टाइडेज 1। ठीक है, सिग्नल पेप्टाइडेज 1 यहाँ पे को उसको सीक्वेंस मिल गया है। ठीक है, सिग्नल पेप्टाइडेज 1 का सीक्वेंस उसको यहाँ मिल गया है, इसका मतलब है कि ये प्रोटीन लिपोप्रोटीन है, और वो उसका जो स्कोर है वो 19 आ गया है। ठीक है, उसका स्कोर जो है वो 19 आ गया है, यानी बहुत अच्छा है, और ये प्रोटीन लिपोप्रोटीन है, कंफर्म है। कहाँ कट करेगा, देखिए ये जो रेड लाइन दिख रही है, जो सबसे बड़ा पीक है, यहाँ पे कट हो जाएगा, यानी 23 और 24, 23 अमीनो एसिड और 24 अमीनो एसिड के बीच में क्या हो जाएगा, कट। तो सिग्नल पेप्टाइड पेप्टाइड कितने अमीनो एसिड्स का है बताइए, 23 और 24 के बीच में सिग्नल पेप्टाइड कट कर रहा है, तो सिग्नल पेप्टाइड कितने अमीनो एसिड्स का है, 22। 23। हाँ 23, 22 नहीं, इसको भी उधर जाएगा ना, ये कट जाएगा ना, इधर आगे चला जाएगा। सो 23 अमीनो एसिड जो है आपके मैच्योर प्रोटीन में से हट जाएंगे। ठीक है, और जो बचेगा वो आपका रियल प्रोटीन रहेगा, यानी 24 से आपका फर्स्ट अमीनो एसिड रियल रहेगा। कट रहा है तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है MAAQA, यानी ए जो है ये 23 नंबर का है और ये 24 नंबर का है, यहाँ कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कि अमीनो एसिड जो है, ये जो 5th नंबर का प्रोटीन जो है ये लिपोप्रोटीन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। दूसरा है सिग्नल पी। सिग्नल पी सेम चीज। ठीक है, इट प्रेडिक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ सिग्नल पेप्टाइड्स एंड लोकेशन ऑफ द क्लीवेज साइट। जैसे वहां पे किया था सेम यहाँ पे भी वही चीज कर रहा है, दोनों सॉफ्टवेयर सेम तरह से काम करते हैं। यहाँ पे आपको ग्राम नेगेटिव सिलेक्ट करना पड़ेगा, सबमिट। यहाँ पे रिजल्ट आ गया है। यहाँ पे देखिएगा लिपोप्रोटीन सिग्नल पेप्टाइड, लिपोप्रोटीन सिग्नल पेप्टाइड का जो स्कोर है बहुत कम है,
अदर का स्कोर बहुत हाई है, इसलिए ये नेगेटिव रिजल्ट है, ठीक है, ये भी नेगेटिव रिजल्ट है, ये पॉजिटिव रिजल्ट है। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे तीन तीन एनालिसिस एक साथ होती है, एसपी, टैट और लिपो, ये तीन वैल्यूज है, तीन स्कोर, इसके बेसिस पे इसको मर्ज किया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे आपको पॉजिटिव स्कोर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बोला है कि यस यू हैव अ सिग्नल पेप्टाइड, यानी इस सीक्वेंस के अंदर सिग्नल पेप्टाइड है, ऐसा उसने बोला। फिफ्थ नंबर का सिग्नल पी ने भी यहाँ पे बताया था कि आपका लिपोप्रोटीन है, इसने भी आपको वहां पे बताया। देखिए ये भी लग रहा है, यस इसने भी बोला, देखिए सिग्नल पेप्टाइड है, इसके अंदर भी सिग्नल, ये भी लिपोप्रोटीन है। इस तरह से आप प्रोटीन्स को ढूंढ सकते हैं कि ये सेल वॉल में स्पैन करेंगे या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। सॉर्ट ग्राम नेगेटिव तब तक आगे जाते हैं, टीएमएचएम में देख लेते हैं। तो ये टीएमएचएम में ट्रांस मेम्ब्रेन हिडन मार्कोव मॉडल, यानी अगर आपका प्रोटीन ट्रांस मेम्ब्रेन स्पैन करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे, ये वाला ट्रांस मेम्ब्रेन वाला, तो ये बताएगा कि आपका प्रोटीन में ट्रांस मेम्ब्रेन स्पैन करने की पॉसिबिलिटी है या नहीं। ये कौन से बेसिस पे डिटेक्ट करते हैं? हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड का कंटिन्यूस एरे हो, यानी कंटिन्यूसली उसका 9 से 13 अमीनो एसिड का कंटिन्यूएशन हो, तो डेफिनेटली वो प्रोटीन ट्रांस मेम्ब्रेन हेलाइज स्पैन करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए नंबर ऑफ प्रेडिक्टेड ट्रांस मेम्ब्रेन हेलाइसिस यहाँ 0 है, यानी ये जो पहला अमीनो एसिड है इसके अंदर ट्रांस मेम्ब्रेन स्पैन करने की पॉसिबिलिटी 0 है, इसीलिए इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको यहाँ पे देखिए आउटसाइड का ज्यादा है ना, ये ऊपर आ गया स्कोर। यहाँ पे भी वैसे ही रिजल्ट आया, यहाँ पे भी वैसे ही रिजल्ट आया, पर यहाँ फिफ्थ नंबर पे देखिए स्कोर बहुत हाई है। इसका कहना है कि ट्रांस मेम्ब्रेन हेलाइसिस है इसमें, ठीक है, और कहाँ है? 29th अमीनो एसिड, 7वां अमीनो एसिड से लेकर 29 अमीनो एसिड तक सारा जितने भी अमीनो एसिड्स को ट्रांस मेम्ब्रेन हेलाइसिस में स्पैन करेंगे करके, तो ये पॉजिटिव सिग्नल है इसके लिए कि हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पैन ये प्रोटीन कर सकता है। अब देखिए ये वाला प्रोटीन देखो कितना अच्छा है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलाइसिस है, यानी वो 9 बार अंदर बाहर जाएगा सेल वॉल से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो ये इसके अंदर 9 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलाइसिस है और इसके रीजन्स भी दिए गए हैं। तो ये डेफिनेटली सबसेलुलर लोकलाइजेशन में हम बोलेंगे कि ये प्रोटीन सेल वॉल सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पैन कर रहा है। देखिए और एक मिला, इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। देन पी सॉर्ट बी, पी सॉर्ट भी आपको रिजल्ट देता है टेक्स्ट फॉर्मेट में। यहाँ पे ये देखना पड़ता है, पहला प्रोटीन इसका नंबर 2 नाम है, ये कहाँ स्पैन कर सकता है। तो सबसेलुलर लोकलाइजेशन जो है ये 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। साइटोप्लाज्म यानी आपका प्रोटीन साइटोप्लाज्म में स्पैन कर सकता है, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या पेरिप्लाज्मिक,
पेरिप्लाज्मिक समझता है ना, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह होती है वो पेरिप्लाज्मिक होती है। देन आउटर मेम्ब्रेन और एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल के बाहर। तो ये बोल रहा है कि आपका ये जो प्रोटीन है नंबर 2 का, ये साइटोप्लाज्म में ज्यादातर रह सकता है, इसलिए फाइनल प्रेडिक्शन जो दिया है वो साइटोप्लाज्मिक दिया हुआ है, यानी साइटोप्लाज्म में ही रहेगा। फिर फिफ्थ नंबर पे देखिए, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में भी रह सकता है क्या? नहीं। पेरिप्लाज्मिक में नहीं, इसलिए उसने यहाँ पे कंफ्यूजिंग रिजल्ट दिया है। देखो फाइनल प्रेडिक्शन बोलता है अननोन, पर इसी फिफ्थ नंबर पे सिग्नल पी और लिपोपी ने आपको बताया था कि ये लिपोप्रोटीन है, और ये बोलता है कि अननोन है, समझ में नहीं आ रहा उसको। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ये देखिए यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन लिख के आया है। वो बोल रहा है कि आपका 7th नंबर का जो प्रोटीन है वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन स्पैन कर सकता है। देखिए लिखा है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। इस तरह से आप किसी भी प्रोटीन का लोकलाइजेशन ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका फंक्शन उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये चारों सॉफ्टवेयर हमने देख लिए, सिग्नल पी, लिपोपी, पीसॉट बी और टीएमएचएमएम। हमने प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन भी देख लिया आज, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। डाउट है कुछ? Okay, I think there are no doubts. So we'll stop here. We'll meet on Tuesday. Monday we'll be having a break.